Hey guys, this is Upin and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, as you all know कि हम लोग इस एडिटोरियल की एनालिसिस करने से पहले इसको एज अ पैसेज हम लोग स्किमिंग करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें भी हमारे कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन आता है। बिकॉज कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन में हमें पहले उस पैसेज को पूरी तरीके से स्पीड में पढ़ के उससे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट करके आंसर करने होते हैं। वही प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं कि स्पीड में हम कितना से ज़्यादा इस पैसेज को कितनी स्पीडली हम समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले उसे करेंगे, उसके बाद इस पूरे पैसेज को अच्छे से एनालाइज करेंगे। एज़ यू ऑल नो, हमारे SBI PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो SBI PO में काफ़ी हेल्प करने वाला है। नॉट इन प्री, मेंस में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ये, क्योंकि हमारे पैसेज थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं उसमें, और हमें पता है द हिंदू के एडिटोरियल भी अच्छे लेवल के आते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग अपना पैसेज एनालिसिस, पहले आप लोग अपना स्किमिंग पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस पार्ट में आएंगे। देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल किस टॉपिक पे है। एडिंग अफगान ऑन G20 मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। G20 ऐसे 20 देशों का ग्रुप है, पावरफुल 20 देशों का ग्रुप है जिनकी GDP शायद हाई होती है। तो ये अफ़गानिस्तान के ऊपर ये मीटिंग हो सकती है। एडिंग अफगान्स इसमें लिखा हुआ है। इंडिया कुड कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एजेंसीज वर्किंग विद डिस्प्लेस अफगान्स। तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो डिस्प्लेस अफ़गानिस्तान हैं उन पे, अफ़गान पीपल हैं, अफ़गान पीपल जो हैं डिस्प्लेस्ड, उनको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। चलिए कमिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। एट अ मीटिंग ऑफ कंट्रीज विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट GDP, द G20 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट द लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान, स्पेशली एज विंटर नियर इट. We also called for the international community to provide Afghanistan with immediate and unhindered access to humanitarian assistance. The meeting comes at the UNHCR published a new appeal for funds with a report that half the population are in need of life-saving humanitarian assistance, and the UN has received only 35% of the fund needed for its relief operation. As a result of the Taliban takeover, most of the direct aids to the Afghan government has dried up. Its reserve has been frozen by the US, making it impossible for salaries to be paid. The Taliban government refused to allow women to work, and its stopping girls from schooling have made the situation more dire. While recognizing of the Taliban and any government engagement is a long way off, the world is faced with the stark choice on how to ensure Afghanistan does not suffer further. At the summit, the EU committed 1.15 billion for Afghanistan and neighboring countries where refugees have fled, while other countries including the US and China pledged 1.1 billion. At a donor conference in Geneva last month, India has not announced any monetary or food assistance. The PM world as a welcome sign that the government remains seized of the welfare of the ordinary Afghans, even as New Delhi has closed its embassy but maintained only a limited exchange with Taliban officials in Doha. Given the manner of the Taliban's takeover in the August, with support from Pakistan maintaining links with terror groups, including those that targets India, leaving the government hard put to increase its engagement or to send aid directly to the new regime. But India could contribute to international agencies that are working with displaced Afghans, particularly for about 1 million children at the risk of starvation. It could also help Iran and the Central Asian states that are housing refugees with monetary assistance. The government could also consider liberalizing its visa regime for Afghans, which at the moment has cancelled all prior visas to Afghan nations and is releasing very few e-visas for desperate desperate to travel. Here, as a goodwill gesture, India could once again send food aid, including wheat, grain, fortified biscuits, and other packaged food directly to Kabul, clearly the imperative to act is now at what the UN Secretary General has called a make or break movement for Afghan people, and to heed the warning that if the international community, which include regional leaders like India, does not help stave off the unfolding humanitarian crisis, not only Afghans but also the rest of the world will pay a heavy price. So ये था हमारा पूरा एनालिसिस, और इसमें बात की गई है कि G20 मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया ने बोला है, कुछ किया नहीं है, कि हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ को सारे ह्यूमैनिटेरियन जो भी
सपोर्ट है वो खोल देना चाहिए अफ़गान के लिए। अफ़गान पीपल पे बात हुई है लाइक कि जैसा हाल हुआ है 50% जो उसकी पॉपुलेशन है वो गरीबी भुखमरी पे आ चुकी है। और अबाउट 10 मिलियन स्टूडेंट्स बच्चे भी हैं, 10 मिलियन चिल्ड्रंस भी उसमें हैं। जब 10 मिलियन चिल्ड्रंस मींस फ्रेंड करीब 1 करोड़ बच्चे। तो और इसमें ये बताया गया कि किसने कितना दिया है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का जो फंड आया है 1.2 बिलियन आया है, 1.15 बिलियन आया है, अमेरिका ने 1.1 बिलियन दिया है और चाइना ने 1.1 बिलियन हेल्प की है। क्योंकि ठंडियाँ आ रही हैं तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये बात हुई है फ्रेंड्स। चलिए अब भी आपको एक लाइन से दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये मोदी ने बोला है ये सारी चीज़ें। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। 50% पॉपुलेशन जो है स्टार्व कर रही है क्योंकि वहाँ पे जो न्यू रिजीम है इनको यू नो इनकी गवर्नमेंट को परमिशन मिलना, सारे देश इनको सपोर्ट करें, ये तो बहुत लंबी बात है। अभी जो है ठंडियाँ आ रही हैं और वहाँ पे स्टारवेशन और भूखमरी की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि UNHCR फंड के लिए अपील किया है उसने, कि उसने रिपोर्ट किया है कि आधी पॉपुलेशन जो है, जो कि 20 मिलियन से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, वो नीड फॉर लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की ज़रूरत है उनको। लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मतलब खाने को भी नहीं है कि। और वो कह रहा है कि 35 जितना फ़ंड चाहिए उसमें से केवल 35% फ़ंड अभी UN को मिला है। और सारे रिज़र्व जो हैं अफ़गान गवर्नमेंट के ड्राई हो चुके हैं क्योंकि US ने एसेट फ्रोज कर दिए थे सारे, जो उनको एसेट मिलता था सारा फ्रोज कर दिया था। और इवन जो हमारे तालिबान गवर्नमेंट ने वुमेंस को और लड़कियों को काम करने के लिए, स्कूल जाने के लिए बंद कर दिया, उससे सिचुएशन और भी बुरी हो रही है। तो इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को मिलके काम करना पड़ेगा, जिसमें अफ़गानिस्तान के लोग वैसे इतना सफ़र कर चुके हैं और ना सफ़र करें। किसने कितना दिया मैंने बता दिया। यूरोपियन यूनियन ने 1.15 बिलियन दिया है, US ने इतना दिया, चाइना ने 1.1 बिलियन दोनों ने दिया है। इंडिया ने अभी भी कोई भी ना ही फूड असिस्टेंट ना मॉनेटरी असिस्टेंट अनाउंस नहीं किया है। तो यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के वर्ड्स आते हैं वो काफ़ी वेलकम करने वाले हैं कि वो अफ़गान पीपल के साथ खड़े हैं और उनकी हेल्प करेंगे। एज़ आप लोगों को पता है कि जो न्यू दिल्ली ने वहाँ पे अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया था तालिबान ऑफिशियल से, उनका कुछ अभी ज़्यादा कनेक्शन नहीं रह गया, लिमिटेड एक्सचेंज ही रह गया है। क्योंकि जैसा पाकिस्तान की हेल्प से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था और बहुत सारे वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप ने भी उनको हेल्प की थी जो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए उनसे इंगेज करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं और पाकिस्तान जो हेल्प कर रहा है, जो उनके मेजर पार्टनर बने हुए हैं, वो उनके रिलेशन इंडिया के साथ नहीं है। इसीलिए वो इंडिया इसीलिए हेजिटेट कर रहा है डायरेक्टली अपना कुछ भी उनको मदद भेजने के लिए, लाइक मॉनेटरी मदद। ये उन सब लोगों को मजबूत ही करेगा और पैसा भी भेजता है उनको। तो आप लाइक अपने दुश्मनों टेररिस्ट ग्रुप को भी पैसा भेज रहे हो, बट इंडिया कुड कंट्रीब्यूट टू, और इंडिया का इंगेजमेंट भी सही नहीं है। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रखा है, जैसे यूएन जो ये संस्था है उसमें अपना फंड दे सकता है, उसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकता है। और कुछ UN एजेंसीज जो डिस्प्लेस अफ़गान्स हैं जो दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं उनके साथ काम कर रहा है, जिसमें से करीब 1 मिलियन बच्चे हैं, मतलब 10 लाख बच्चे हैं जो भूखमरी स्टारवेशन मतलब भूख से मरने की कगार पे हैं। और वो ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जहाँ पे रेफ्यूजीज़ की तरह अफ़गानिस्तान जाके अफ़गान बस गए हैं उनको मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। और वीज़ा के जो कानून है इंडिया अफ़गानिस्तान के ऊपर लगा रखा है, वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर रहा है सबको, डायरेक्ट वीज़ा तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो उसको अपना थोड़ा सा उन सारे रूल्स को ढीला कर सकता है क्योंकि बहुत सारे जो अफ़गान के लोग हैं वो यहाँ आना चाह रहे हैं। एज अ गुडविल गेस्चर इंडिया कुड वंस अगेन सेंड फूड एड इंक्लूडिंग वीट ग्रेन फोर्टिफाइड बिस्किट्स। और कह रहा है कि गुडविल जेस्चर की तरह इंडिया कुछ और सपोर्ट भेज सकता है, जैसे फूड एड्स, वीट
ग्रेन, फोर्टिफाइड बिस्किट, अदर पैकेट फूड को डायरेक्टली काबुल भेज सकता है। कि कह रहा है कि क्लियरली द इम्पेरेटिव ऑफ एक्ट इज़ नाउ, जो अभी असली जो हमें एक्ट करना चाहिए वो समय अभी है, क्योंकि यूएन जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ना कि केवल अफगान लोगों के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी ये खतरा है। और उन्होंने ये वार्निंग होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और रीजनल लीडर्स के लिए, अधिकतर लाइक इंडिया, रीजनल लीडर्स में वहाँ इंडिया भी आता है। अगर वो हेल्प नहीं करते हैं और इन लोगों को स्टारवेशन की तरह अनफोल्ड, स्टार्व ऑफ मतलब भुखमरी में, इस तरह जो भुखमरी अफ़गानिस्तान उसमें हेल्प नहीं करते हैं, तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना ही अफ़गान के लिए, बस ना ही अफ़गान्स को, पर पूरे दुनिया को इसके लिए हैवी प्राइस पे करना पड़ सकता है। तो ये था एक ओवरव्यू था फ्रेंड्स। चलिए, ये स्कीमिंग के बाद जो हम लोगों ने ओवरव्यू निकाला, फिर भी हमें 10 मिनट लग गए हैं, बट स्कीमिंग काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। चलिए फिर से देखते हैं, अब इस पैसेज के अच्छे से एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन से वर्ड्स हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एट अ मीटिंग ऑफ कंट्रीज विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट जीडीपीज, द G20, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट द लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। तो लूमिंग का मतलब क्या होता है? तो G20 में क्या है, 20 ऐसे देश हैं, टॉप 20 जीडीपी वाले फ्रेंड्स की देशों की मीटिंग होती है। इंडिया उसमें एक है, सीमिंग टू हैपन एंड रिगार्डिंग। एज इवेंट अबाउट टू हैपन, तो आने वाली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो अफगानिस्तान में जो होने वाली है, ऐसा इवेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो होने ही वाला है उसको लूमिंग कहेंगे। अबाउट द लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे जो बोला है G20 मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने, स्पेशली एज विंटर इन, जैसे कि देख सकते हैं ठंडिया के पास में। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रोवाइड अफगानिस्तान विद इमीडिएट एंड अनहिंडर्ड एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। तो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट की है कि अफ़गानिस्तान को इमीडिएट एंड अनहिंडर्ड एक्सेस प्रोवाइड करें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करें। द मीटिंग केम एज द UNHCR पब्लिश अ न्यू अपील फॉर फंड्स विद अ रिपोर्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर इन नीड ऑफ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। तो ये मीटिंग कब आई है? जब UNHCR ने एक पब्लिश किया है, अपील की है, और उन्होंने अपील की है फॉर फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि एक रिपोर्ट आएगी, आधी पॉपुलेशन है जो कि 20 मिलियन है, मतलब 2 करोड़, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइफ सेविंग असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। UN हैज़ रिसीव्ड ओनली 35% ऑफ द फंड नीडेड फॉर रिलीफ ऑपरेशन, द रिजल्ट ऑफ तालिबान टेक ओवर मोस्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ ड्राइड अप। तो UN ने जो है केवल 35% अभी उसको मिला है, और वो बोला है जैसे तालिबान ने टेक ओवर किया है, जो भी वहाँ पे अफ़गानिस्तान के डायरेक्ट एड्स थे वो सारे ड्राई ख़त्म हो चुके हैं। रिजर्व्स हैव बीन फ्रोजन बाय द US मेकिंग फॉर सैलरीज टू बी पेड। ओके, और जो रिजर्व्स थे उसके अफ़गानिस्तान के सारे US ने फ्रोज कर दिए हैं। तो ये इम्पॉसिबल हो गया है कि सैलरी भी नहीं पे की जा के कर पाना भी मुश्किल हो गया है। द तालिबान गवर्नमेंट रिफ्यूज टू अलाउ वुमेन टू वर्क एंड स्टॉपिंग गर्ल्स फ्रॉम स्कूलिंग हैव मेड द सिचुएशन मोर डायर। तो जैसा पता है तालिबान ने वुमेन्स और को पढ़ने और काम करने के लिए मना ही कर दिया, तो उससे सिचुएशन और बुरी हो गई है। डायर, डायर मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट। डायर, एक्सट्रीमली सीरियस, डायर, ड्रेडफुल, मोर सीरियस, मोर डायर मतलब एक्सट्रीमली सीरियस। While recognition of Taliban and any government engagement is a long way off, the world is faced with a stark choice on how to ensure Afghanistan does not suffer further. तो कह रहे हैं कि जैसा हमको पता है तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देना और एनी और गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट अभी काफ़ी समय लगेगा उसमें, लेकिन दुनिया के पास अब एक चॉइस है कि
कैसे वो अफ़गानिस्तान ये श्योर कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और ज़्यादा सफ़र ना करे, वो काफ़ी सफ़र कर चुका है। एट द समिट द EU कमिटेड 1.15 बिलियन फॉर अफ़गानिस्तान एंड नाइबरिंग कंट्रीज़ वेयर रेफ्यूजीज हैव फ्लड। तो इस समिट में यूरोपियन यूनियन ने जो कमिट किया है कि वो 1.15 बिलियन डॉलर देगा अफ़गानिस्तान में और उसकी नाइबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे रेफ्यूजीज़ गए हुए हैं। और कह रहे हैं अदर कंट्रीज़ लाइक US एंड चाइना ने भी 1.1 बिलियन जो है वो डोनेट किया है। जिनेवा लास्ट मंथ, जो जिनेवा में लास्ट मंथ हुई है उसमें डोनेट किया। इंडिया हैज़ नॉट अनाउंस एनी मॉनिटरी और फूड असिस्टेंस, लेकिन इंडिया ने कुछ भी, ना ही फूड ना ही मॉनिटरी असिस्टेंस, कुछ भी नहीं अनाउंस किया है। द PM's वर्ड एज अ होल साइन that the government remains size of the welfare of the ordinary Afghan, even as New Delhi has closed its embassy but maintain only election with Taliban official in Daha। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जो वर्ड हैं वो एक साइन है कि गवर्नमेंट रिमेंस, गवर्नमेंट अभी भी साइज्ड है, सीज्ड, ग्रैप, ग्रास्प, स्नैच, टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, टेक ईगरली एंड डिसीजली, अफेक्ट एक्चुअली, स्ट्रांगली अपील टू, कुछ नहीं है। तो वही सिचुएशन, जैसे मौका सीज़ करना है। तो अफ़गानिस्तान और ऑर्डिनरी पीपल के लिए न्यू दिल्ली ने और लाइक ये बोल रहा है कि अफ़गान के लिए वो काम करेगी इंडिया। और न्यू दिल्ली ने जैसे ही अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी वहाँ पे केवल लिमिटेड एक्सचेंज रखा था तालिबान ऑफिशियल्स के साथ दोहा में। इवन द मैनर ऑफ द तालिबान टेक ओवर इन अफगान वाइल सपोर्ट बाय पाकिस्तान मेंटेन लिंक with the terror groups including the most that target India leaves the government hard put to increase its engagement or to send aid directly to the new regime। तो कह रहे हैं जैसे कि तालिबान जिस मैनर ने अफ़गानिस्तान में कैप्चर किया था और पाकिस्तान के हेल्प के साथ किया था, पाकिस्तान उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था और कुछ टेरर ग्रुप के साथ भी इसने मेंटेन है रिलेशन जो इंडिया के पास हमेशा हेल्प करते हैं। तो इसलिए हार्ड पुट है इंडिया के लिए टू इंक्रीज इंगेजमेंट, इसीलिए इंडिया के लिए तालिबान के साथ इंगेजमेंट एक हार्ड पुट है, बहुत मुश्किल है। बायरली एबल फोर्स विद डिफिकल्टी और बेयरली एबल, बहुत मुश्किल से कर पाना, कोई चीज़ जो बहुत मुश्किल से आप कर पाओ, हार्ड पुट है। बट इंडिया कुड कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्किंग विद द डिस्प्लेस अफगानिस्तान पर्टिकुलरली फॉर अबाउट 1 मिलियन चिल्ड्रन ऑन द रिस्क ऑफ स्टार्वेशन। तो कह रहे हैं कि इंडिया लेकिन क्या कर सकता है, उस सारी एजेंसीज़ के थ्रू हेल्प कर सकता है जो डिस्प्लेस अफ़गान के साथ काम कर रहे हैं, जो इस अफ़गानिस्तान दूसरे देशों में डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं उनको उनके साथ हेल्प कर सकता है। स्पेशली वहाँ पे 1 करोड़ बच्चे हैं जो भूखमरी के एकदम कगार पे हैं। इट कुड ऑल्सो हेल्प ईरान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट डेट आर हाउसिंग रेफ्यूजी विद मॉनिटरी असिस्टेंट। वो ईरान और सेंट्रल एशियन देशों को भी हेल्प कर सकता है जो कि मॉनिटरी असिस्टेंट रेफ्यूजीज़ को हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और मॉनिटरी असिस्टेंट उन्हें ये मॉनिटरी असिस्टेंट के साथ प्रोवाइड कर सकता है, मतलब पैसा दे सकता है। गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कंसिडर लिबरलाइजिंग इट्स वीज़ा रिजीम फॉर अफगान विच आर द मूवमेंट है कंसिल प्रायर किसी रोग। तो जो वीज़ा रिजीम है उसको भी हेल्प कर सकता है, वीज़ा प्रोवाइड कर सकता है। काफ़ी सारे अफगानिस्तान आना चाहते हैं। एज अ गुडविल जैसा इंडिया कुड वन अगेन सेंड फूड एड इंक्लूडिंग वीट गेन, तो फूड हेल्प की काबुल डायरेक्टली वो फूड हेल्प प्रोवाइड कर सकता है एज अ गुडविल जेस्चर। Clearly the imperative to act is now as the UN Secretary has said make or break movement of Afghan people as to morning of the international media। तो कह रहे हैं कि जो एक्ट करने का क्लियरली जो वो काम करना चाहिए वो अभी है, क्योंकि UN जनरल सेक्रेटरी ने भी ये बोल दिया है कि मेक और ब्रेक की सिचुएशन है, अफगान पीपल को अभी नहीं हेल्प करेंगे तो वो लाइक स्टेशन से मर सकते हैं और बहुत बुरी सिचुएशन में जा सकते हैं। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वार्निंग दिया है जनरल असेंबली ने और रीजनल लीडर्स के लिए, जैसे इंडिया हो गया, क्योंकि जो उसके आसपास के अफ़गानिस्तान के लीडरशिप हैं कंट्रीज़, उनके लिए वार्निंग है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर उसमें हेल्प नहीं की और लोग स्टार्व होके मर गए या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका नहीं गया तो ये ना ही अफ़गानिस्तान के लिए पर पूरे दुनिया के लिए हैवी प्राइस इसको पे करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो सकता है और पूरी दुनिया को इसके लिए हैवी प्राइस पे करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ इट फ्रेंड, ये था हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नहीं मिली हैं, ना ही वकास मिली, बट हमें अफ़गानिस्तान की
प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि हम लोग अभी तक तो न्यूज़ में सुन रहे थे कि हाँ ये हुआ, उन्होंने कर लिया, तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बात हुई है, कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी कैसे हेल्प कर रही है उस पर बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छा पैसेज पढ़ने को मिला। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको लगता है किसी को इससे हेल्प मिल सकती है तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।